Those 3 wickets in 3 overs were the big dampener, after which Varun Badola and Raja did rescue the team to an extent. But it is not enough. 13 overs, 80 for 4. Maybe they have the right man in. Shabir Ahluwalia taking a single off his first delivery. Now faces as Adarsh comes in for his second over. 6 away in his first. Ooh, a direct throw and Varun was in trouble. Took just that one step too many. I think although it was his call, Shabir did well to send him back. Of course, they got the run eventually. That's Raja being dismissed in the previous over. That's the moonwalker. Off the back foot. Punched away. Yeah, but we saw Varun limping along. I think I hope he's okay, because Mumbai Heroes desperately need him right now. Stumbled a bit and then quickly corrected himself, but maybe he's hurt himself. We hope not. Well, I think it's just a touch of cramps. I think it's a touch of cramps there. And I hope he's hydrated himself before the game. It's quite humid. The weather's quite nice though. It's pleasant. Isn't as hot. Just a touch of cramps for Varun there. For the sake of the game, I hope the opposition allows him a runner, because we've had enough delays already. The light went off a little while back. Wonder if he's going to... The current score after 13.2 overs. Just over 6 overs remaining in the innings of the Mumbai Heroes. I think he has asked for one, and he may be provided one, because the Celebrity Cricket League does have a few amendments to the standard ICC rules, and in the interest of ensuring that the game goes on without too much delay. Alright, we'll take a very short break, come right back with the action. So while Salman and co enjoy the music around the ground, Sunil Shetty to his right, Varun Badola in the middle gets a bit of treatment, and we should really be back with action in a couple of moments. Aftab Shibnasani, unfortunately, out for another duck today. He's a good cricketer, very keen, very committed, but fortunately not a good run for him this third edition of the CCL. But what a treat for the crowds, Rohan, to have all these major draws, these huge movie stars coming right here, and of course entertain with cricket or the support of it. We hope that Varun can carry on. Raja's back, perhaps as the runner. You did mention that officially maybe disallowed, but between the two teams, if Venkatesh doesn't have a problem, well, just to fill you in, good reminder by Rohan that some of the special rules here at the CCL include the fact that two of the icon players can have runners as a pre-nominated situation. And it's a good time to remind you about our green partner at the CCL. And they make the most energy efficient appliances, do Godrej Aeon. And they do have what's called a 1 Watt project. In other words, an initiative supported by the CCL in Season 3, an effort to create an awareness amongst people to save energy. Log on to onewattproject.com and pledge to save some watts, save some energy, make sure that we leave behind a good, clean, green world for all the generations following. Okay, Shabir's in. He's faced only 2 deliveries, got 2 runs, so he knows what to do. And he did play, like I've mentioned, a good knock at Kochi in their opening match, which they went down to against the Kochi team. So who'll score the highest number of runs? Aftab, well, we know he won't. Shabir could, Ramcharan certainly could, and so too Raghu. But I think the middle two, well, maybe I shouldn't say that. Facebook.com/CCL. Send in your choices and become one with the Celebrity Cricket League.
season 3. All these delays don't help. But the batsmen particularly need to refocus, get on with the job, which is not easy. So what's your score again, you said, for the Mumbai Heroes? Well, I think they'll get in excess of about 140. 145, 147. What's yours? Yeah, I'm more in the early 130s. Considering how tight the Telugu Warriors bowling is. And yes, Shabir can power it on, so too Apurva when he comes in. But they need time to get stuck in, and it's just not easy. The Telugu Warriors bowling too strong for me. Adarsh has gripped the ball in a way that he'll be bowling an in-swinger. Not much swing, but very effective nonetheless because of the dot ball. And Varun still struggling, limping along, and I'm not so sure that's obviously not good for balance. That showed because he couldn't quite get the timing onto that shot. Last ball of the 14th over. Drifts down leg, but Varun unable to capitalize. They do scramble for a single. It's going to be it. So 14 overs gone. It's 84 for 4. So the Mumbai Heroes in front of a packed stadium at the Lal Bahadur Stadium in Hyderabad. Up against it, 23 for Varun Badola, but it's been a slow 23. Shabir just joined him. And if they need to set the Telugu Warriors, the home team, a decent enough challenge, well, then they've got their task cut out. Only 6 overs left, and they need to get, well, at least 140-50 to challenge the mighty Telugu Warriors. To take you through the last 6 overs, it's going to be Ajay Mehra. Is that okay now? And Raman Bhanot. धन्यवाद चारू। तो ये जो 6 ओवर है काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। उठा के खेला है और गैप में खेला है, यहाँ पे 4 रन मिलेंगे। काफी देर के बाद ये बाउंड्री आती हुई और समर्थक मुंबई हीरोज के काफी प्रसन्न। बेहतरीन प्रयास वहां पे किया था, लगभग फुल पे गेंद को लेते हुए और कैप पे खेला वरुण बडोला ने। फुल टॉस बनाकर खेला हुआ स्ट्रोक बडोला द्वारा, और इस तरह के स्ट्रोक्स की जरूरत इस समय टीम मुंबई हीरोज को। तरुण इस समय अपना चौथा और आखिरी ओवर डालते हुए 30 गेंदों के बाद आई हुई है बाउंड्री, और एक और बड़ा प्रहार, लेकिन इस बार फिर बाउंड्री रोप के पार जाती हुई गेंद एक टप्पा खाने के बाद अंपायर एक बार जरूर चेक करना चाहेंगे कि क्या ये बाउंड्री से पहले टप्पा खाई थी कि नहीं। ऐसा लगा जरूर, पर बहुत ही बेहतरीन प्रहार, जोन में डाली हुई गेंद वरुण बडोला के लिए बॉटम हैंड का प्रयोग, और 4 रन और मिलते हुए। जी हाँ, इस बार स्पिन के साथ खेला था और बहुत ही बढ़िया प्रयास था। डीप विकेट में इतना आसान रहता नहीं, पर कहीं ना कहीं अब इरादे स्पष्ट नजर आ रहे हैं अपने हाथ खोलते हुए वरुण बडोला, और दर्शा रहे किस प्रकार की बल्लेबाजी कर सकते हैं। पर कितना बढ़िया यहाँ पे प्रयास, कंधे में भी आ सकता है, थोड़ी सी अब चोट आई है। सम्राट बाउंड्री रोप पर फील्डिंग करने की कोशिश करते हुए टंबल किए अपनी बाईं ओर, लेकिन गेंद को रोकने में असमर्थ। 88 पर 4 मुंबई हीरोज, और एक अच्छी शुरुआत होती हुई, कहना पड़ेगा 92 पर 4 इस चौके की मदद से। 2 गेंदों पर ही चौके लगने के बाद अब गेंदबाज अंडर प्रेशर, और इस बार फिर से पुल करने का प्रयास, पर तेज गति की गेंद थी, यही कारण की लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जाती हुई। अब ऐसा लग रहा है कि अपनी इनिंग को पेस बहुत बड़े तरीके से कर रहे हैं वरुण बडोला। शुरू में अच्छी टेक्निक दिखाई थी, सक्षम टेक्निक दिखाई थी। गति की बात करें तो 84.2 किलोमीटर की रफ्तार से डाली हुई आखिरी गेंद, जिसमें 1 रन लिया था,
और पहली 2 गेंदों पे चौका लगाया तो कहीं ना कहीं दबाव अब गेंदबाज तरुण के ऊपर जरूर होगा। बहुत ज्यादा शॉट और इनसाइड आउट खेला हुआ स्ट्रोक, 4 रन और एक और बम छिका हुआ मोमेंट यहां पर टीम मुंबई हीरोज के लिए। और इस बार बेहतरीन प्रहार बाउंड्री रोप के पार भेजने में कामयाब यहां पर बल्लेबाज और 13 रन आ चुके हैं केवल 4 गेंदों में। यह जो गेंद की लंबाई है उसको बहुत बढ़िया तरीके से इस बार भांपा शबीर ने बैकफुट पे गए और पूरी अपनी जो ताकत है वो झोंक दी और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज एक दूसरे को। बिल्कुल, शब्बीर अहलूवालिया इस समय 7 पर बल्लेबाजी करते हुए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर वरुण बडोला 32 रन बना चुके हैं। 30 गेंदें लगी, यानी 5 ओवर तक एक भी बाउंड्री लगाने में कामयाब नहीं रहे थे मुंबई हीरोज के बल्लेबाज। और एक और जोरदार प्रहार, इस बार लीडिंग एज और कैच लेने में असमर्थ रघु। आसान नहीं होता है क्योंकि एक तो गेंद टॉप एज से लगकर निकली, इसलिए स्वर्ल कर रही होगी और इन लाइट्स के अंदर एक स्कायर को पकड़ पाना आसान मुश्किल हो जाता है फील्डर के लिए। बिल्कुल, और काफी मुश्किल रहते हैं और गेंद पीछे जाती हुई, हालांकि हाथ जरूर लगा था पर गेंद छिटक के बाहर गिरती हुई। 1 रन मिला शबीर को। अब वरुण बडोला एक बार फिर स्ट्राइक पे आते हुए। ये ओवर काफी बढ़िया रहा है, 14 रन अभी तक आ चुके हैं 5 गेंदों में। और इस बार ड्राइव किया, खिलाड़ी डीप में तैनात, मात्र 1 ही रन मिलेगा अंतिम गेंद पे। 99 पे 4। In the 15 overs, Much for staying with us. Mumbai Heroes 99 for 4. We are talking to the man himself. I'm deaf क्योंकि जब आप स्टेडियम में आए, the whole stadium just erupted. Everyone's waiting for you. And there they go again. Lovely fans. Yeah, it's good to be here. Like you like Hyderabad? Huge supporters. Huge supporters. Of course, हम सब जानना चाहते हैं. When are you going to play? You said you're going to play next year. लास्ट ईयर इस साल थोड़ा सा बिजी था, लेकिन अगले साल अगर मैनेज कर लिया प्रैक्टिस वगैरह तो ज़रूर खेलूँगा। Are you happy with how CCL is? This season 3, 2 new teams. जी हाँ, it's growing rapidly, and people, all the teams are playing very seriously. Everybody is very involved. बस थोड़ा सा cleaning up है जो कि करना है। Technically, people like taking people who almost played for Ranji and they're making films with them. That's not the right way to do it. I just think that we should play with stars. That's how this whole this thing will build. It's and then winning and losing is. But if you playing with people who are almost professionals, तो फिर उसमें मजा नहीं आता। आते हैं कि एक्टर्स को रियल क्रिकेट देखने के लिए, सीरियस क्रिकेट देखने के लिए, और फिर ऐसे लोग फील्ड पे होते हैं जिनको देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये नहीं होना चाहिए कि जीतने का इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि भर दिया आपने फील्ड को लोगों से जो कि एक्टर्स नहीं हैं। एक्टर्स को देखने आ रहे हैं यहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए और सीरियस क्रिकेट खेलते हुए, तो आई थिंक दैट वो मेंटेन करना चाहिए। Unfortunately, Mumbai Heroes lost another wicket. लेकिन ये मुंबई हीरोज की टीम के बारे में आप हमें क्या बताना चाहते हैं? Yeah, he's gone, he's out. अब ये मुंबई हीरोज की टीम के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? बस डेडिकेटेड लॉट, सब बहुत मेहनत करते हैं, शूटिंग पे जाते हैं, सब बिजी एक्टर्स हैं, शूटिंग पे जाते हैं। कोई टीवी करता है तो कोई पर्दे पे है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में है। बट शूटिंग करने के बाद सब लोग आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और एक अच्छा ग्रुप हो गया, एक अच्छा टीम, वो एक स्पिरिट, एक एनर्जी बहुत अच्छी हो गई है। अब हम लोग वी गिव इट आवर बेस्ट। हमसे अगर कोई अच्छा खेलता है तो he deserves to win, so it's the best team wins. We're not worried about that. We just worried about playing a good game. Salman, you have such lovely brand ambassadors for all of the teams. What do you want to say about all those ladies over there? They've come out in full support. They're beautiful ladies and they're supporting the team big time. I really appreciate that. Thank you so much for talking to us. Have fun here. Thank you, thank you. It's back to commentary. धन्यवाद मयंती। तो वो थे अब सलमान खान बातचीत करते हुए, और
यहाँ पे इसी बीच 100 रन भी पूरे हुए हैं मुंबई हीरोज को। एक और झटका लगा है, the Mumbai Heroes. शबीर वापस बोल्ड होके पवेलियन लौट चुके हैं 8 रन बना के। और तारीफ करनी होगी अब आदर्श की, जिस अंदाज से उन्होंने गेंदबाजी की है, रनों पे अंकुश लगाया है, विकेट लेने में सफल रहे हैं। और नए बल्लेबाज क्रीज पे अपूर्व लाखिया, बाएं हाथ के बल्लेबाज। अब ये एक ऐसे बल्लेबाज है जो कि आक्रामक शैली में बल्लेबाजी कर सकते हैं और जरूरत है, दरकार है इस टाइम मुंबई हीरोज को कुछ बड़े स्ट्रोक्स की। यहाँ बिल्कुल बड़े स्ट्रोक्स लगाने की जरूरत, इसी वजह से शब्बीर अहलुवालिया का विकेट एक बहुत अहम विकेट तेलुगु वॉरियर्स के लिए, क्योंकि हाथ खोलकर बड़े स्ट्रोक्स लगाने की काबिलियत रखते हैं। 8 रन बनाकर आउट हुए शब्बीर। आदर्श बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए समय पहली गेंद पर अपना खाता खोलने में कामयाब अपूर्व लाखिया। यहां पर अगर शबीर की बात करें तो बहुत ही बढ़िया गेंद थी आदर्श की। विकेट टू विकेट गेंदबाजी की थी और उसका पूरा उनको इनाम मिला। देखिए अक्रॉस लाइन खेलने का प्रयास किया था शब्बीर ने, पूरी तरह से जो लाइन है उसे चूक बैठे और ये था रिएक्शन आदर्श का अपने ही अंदाज में। हुसैन बोल्ट से प्रेरित होते हुए और कप्तान वेंकटेश जो इस समय मैदान पर नहीं तेलुगु वॉरियर्स के लिए, खासे खुश अपने गेंदबाज के प्रदर्शन से। इस समय 101 स्कोरबोर्ड पर दरकार यह है कि कम से कम 9 या 10 रन प्रति ओवर की औसत से बचे हुए 5.5 ओवर के अंदर 4.5 ओवर के अंदर रन बनाए मुंबई हीरोज की टीम। अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो लगभग 140 के आसपास के लक्ष्य तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर ब्रेकडाउन देखें पारी का तो पहला 50 केवल 47 गेंदों में आया था, दूसरा 45 में। यह मुझे लगता है कि जिस प्रकार की बल्लेबाजी तेलुगु वॉरियर्स की बहुत जरूरी है कि कम से कम 140 से ऊपर का आंकड़ा छुए। अब उसके लिए यहां से भी अभी कुछ अच्छे ओवर की जरूरत रहेगी, कुछ बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। बाएं और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन फिलहाल क्रीज पे। यहाँ पर वरुण बडोला जो काफी देर से मैदान पर हैं, उनके ऊपर काफी कुछ निर्भर होगा। लेकिन अगर बात करें आदर्श की गेंदबाजी की तो इस ओवर के अंदर लगभग 121-122 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए अच्छा कंट्रोल दिखा रहे हैं। गति भले इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन लाइन और लेंथ की गेंदबाजी करते हुए ओवरऑल तेलुगु वॉरियर्स की गेंदबाजी काफी एक्यूरेट रही है। बिल्कुल दिशा के साथ गेंदबाजी करिए, कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करिए। अगर रन्स पड़े हैं तो वो स्पिनर्स की गेंदबाजी पर ज्यादा रन लेने में कामयाब रहे हैं मुंबई हीरोज के बल्लेबाज। जी हाँ, काफी नपीतुली गेंदबाजी और कहीं ना कहीं अब विकेट टू विकेट गेंदबाजी किया, उसका परिणाम भी उनको मिला है, सफलता उनके हाथ लगी है। इस बार ड्राइव किया, गेंद हवा में, खिलाड़ी टीम में तैनात और यहाँ पे मिसफील्ड होती हुई जिसके कारण 4 रन मिलेंगे। अभी तक का जो ग्राउंड फील्डिंग है काफी अच्छी रही है। वेंकटेश थोड़े से निराश, लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्ड बाउंस यहां पर मिलता हुआ फील्डर को। कवर किया हुआ था गेंद को, लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्ड बाउंस मिला, देखिए, और वहां पर हाथों के नीचे से गेंद निकल गई। दसवां चौका पारी का, एक बड़ा 6 अभी तक लगा है मुंबई हीरोज की पारी के अंदर अभी तक, लेकिन कुछ और बड़े स्ट्रोक्स लगाने की जरूरत और अपूर्व लाखिया में ये काबिलियत है। जी और अब अपना एंगल बदलते हुए राउंड द विकेट आ रहे हैं थर्ड मैन का खिलाड़ी सर्कल पे अपूर्व लाखिया के लिए और फिर से ड्राइव किया। इस फील्ड के कारण 1 रन और मिलेगा अंतिम गेंद पे। 107 पे 5। Almost there, brilliant try there by number 33, Ron Charan. Into the 107 for 5. On a Hyderabad, can you hear? You clap, 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 clap.